A very good afternoon to class 6th. In yesterday's lecture, we have started to finding the area of rectangle and square. Right? Rectangle and square. Before started, let's take a recall that in rectangle, how many sides are equal? In rectangle, only opposite sides are equal. And in square, all sides are equal. So on the basis of these sides, area of square equals to side multiply side and square unit. यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, जो भी यूनिट आपकी क्वेश्चन में गिवन है और यू आर यूजिंग दैट, राइट। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बेटा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। रिमेंबर दिस थिंग, पैरीमीटर में जो है वो आपकी सेम यूनिट आती है। एंड एरिया, व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ एनीथिंग, देयर यू हैव टू मल्टीप्लाई यूनिट्स ऑल्सो, राइट। So in this first two questions we have done. Come to K3, that is the length and breadth of a rectangle is 40 meter and 30 meter respectively. If it has another rectangle of dimension 34 meter and 24 meter respectively inside it, so find the area between the two रेक्टेंगल्स। मीन्स देखो, फर्स्ट रेक्टेंगल्स की जो लेंथ और ब्रेथ गिवन है वो है 40 मीटर और 30 मीटर। इफ़ इट इज़ अनदर रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन, जो सेकंड रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस क्या हैं? 34 मीटर एंड 24 मीटर। सो फाइंड द एरिया बिटवीन द टू रेक्टेंगल्स, right? So we have to find the area between them, means between these two rectangles. So what we will do, firstly we will find the area of both the rectangles, right? So let's start with the one by one. We will find the area of both the rectangles. So now let's start with the first exercise 10.4. K3. We will write, give the name them, rectangle 1, right? Rectangle 1. In this rectangle, length equals to 40 meter and breadth equals to 30 meter, right? So we have to find area of rectangle, that is length multiply breadth. So it is equals to 40 multiply 30, and when you multiply, your answer is 1200 square meter, right? ये तो था आपका फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया। नाउ रेक्टेंगल 2। इन दिस रेक्टेंगल लेंथ किसके इक्वल है? 34 मीटर। ब्रेथ equals to 24 meter, right? Now area of rectangle वो किसके इक्वल आएगा आपका? सेम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, that is equals to 34 multiply 24. Now multiply, we will multiply it here. 4 4s are 16, 1 goes carry,
4 3 ज़ा 12 and 1 13, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 6 8 plus 3 11, 1 goes carry, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, right? So area of another rectangle is 816 square meter. Now the question is the area between these two. तो इन दोनों के बीच में तो वही एरिया होगा बेटा. ये एरिया तो क्या है आपका टोटल एरिया है. उस ये लगा लो वहाँ पे एक ना पहले आपको ये रेक्टेंगल गिवन है. उन्होंने बोला है कि इसके इनसाइड भी एक रेक्टेंगल और है, राइट. वन मोर रेक्टेंगल इनसाइड इट एंड ये उसकी डायमेंशन है. तो कंप्लीट तो हमारा रेक्टेंगल ये है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है. अब हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू रेक्टेंगल्स. तो इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट. इन दोनों के मिड का एरिया फाइंड आउट करना है. सो व्हाट यू विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट इट. एरिया between two rectangles equals to 1200 minus 1200 square meter minus 816 meter, right. Subtract and find the how much area left between these two rectangles. Clear? Now after this K4 is not K4 S1 if the length of a rectangle is double its breadth. देखो ये थोड़ा सा जो आएगा अब आपका क्वेश्चन that is tricky. If length of the rectangle is double of its breadth, so it means firstly where we have to go. Now see how we will do this. S1 the length of the rectangle means किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल है तो क्या होगा यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, राइट. एज दे सेड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो डबल है ब्रेथ के. सो कैन आई मेक इट एक्स. मैंने ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को क्या माना है एक्स. और अगर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स होती है बेटा तो लेंथ क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की 2x, बिकॉज इट इज डबल. लेंथ जो है वो आपकी ब्रेथ की क्या है डबल है. क्लियर. नाउ आफ्टर दिस एंड द पेरीमीटर इज 40 मीटर. सो क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर इक्वल्स टू 40 मीटर. अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 40 मीटर. ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो वहाँ पे क्या आएगा डिवाइड. तो 40 बाई 2 20 मीटर, राइट. लुक इससे बेटा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. तो आप क्या करो इस पेरीमीटर को दैट इज़ इन बुक इसको यहाँ पे 60 कर लो. नहीं तो अगर देखो हम ऐसे करते तो क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 20 मीटर एंड दिस मीन्स 3x इक्वल्स टू 20 मीटर, राइट. और x क्या हो जाएगा आपका 20/3. तो 3 की टेबल में 20 नहीं आता. इट मीन्स 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 ऐसे ही आप डिवाइड करते चलोगे. सो मेक इट 60. क्या करो इसको 60. देन इट इज़ ईजी. 60 मीटर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 60 मीटर. सो 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 60/2 दैट इज़ 30 मीटर. क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू
30 meter and x equals to 30/3, that is 10 meter. क्लियर? सो देखो x अगर हमारा 10 आया है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की 10 मीटर. आप इसको यहाँ पे अलग से लिखोगे. सो लेंथ क्या थी 2x, इट मीन्स 2 × 10 20 मीटर. और ब्रेथ क्या हो जाएगी x इक्वल्स टू 10 मीटर. राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड द area of rectangle. 20 मीटर × 10 मीटर, सो क्या हो जाएगा 200 स्क्वायर मीटर. क्लियर? यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन क्या है बेटा, उससे आपकी जो कैलकुलेशन है दैट गोज इन पॉइंट्स. सो बेटर है पॉइंट से रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप कर लो जो आपका पेरीमीटर है दैट इज इक्वल्स टू 60. यहाँ पे इसको क्या करोगे आप 60. राइट, नाउ आफ्टर दिस S2 is find the area of the given figure. Now you have to find the area of the given figure. So first of all we will make the figure and find the area. S2 figure is like this. See, I am making it small. Like this. This is 10 centimeter, 24 centimeter, 8 centimeter, 8 and 10. So देखो, अगर आपको इस फिगर को प्रॉपरली देखेंगे तो अपर फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट में क्या है स्क्वायर है 8 राइट. तो यू विल राइट इट हेयर एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 8 centimeter multiply 8 centimeter and your answer is 64 square centimeter. Clear? Now come to second. ये complete 24 है राइट. यहाँ पे 8 कट हो जाती है तो इट मीन्स ये क्या होगी 16. तो आपको ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है. हमें पता है रेक्टेंगल में जो होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो ये कंप्लीट क्या होगी 24. ये 10 है, ये 10 है. सो इन सेकेंड लेंथ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. चॉइस आपकी, आप इसको कैसे ही कर लो. आप लेंथ को 10 ले लो, 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ अगर गिवन नहीं है तो हम किसी को भी एज पर अस ये क्या हो जाएगा आपकी 24 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ सेकेंड इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ राइट, दैट इज 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 24 सेंटीमीटर और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 240 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ दिस सेड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. सो टोटल एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड. फर्स्ट का एरिया कितना है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड सेकंड का 240 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ ऐड 4
6 plus 4 10, 1 goes carry, 304 square centimeter, right? So total area of the given figure is 304 centimeter. I hope it is clear to everyone. Look beta, in the previous lecture also I told you, whenever you are going to do these types of sum, it is very easy to divide that given figure in parts. देखो अब हमारे लिए अगर हम वैसे सिंपल कंप्लीट का एरिया फाइंड आउट करते तो इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर अस. सो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर मान लिया, इसको रेक्टेंगल, बिकॉज एज पर द गिवन साइड्स. क्लियर? ये सो इट इज़ ईजी. फर्स्टली हमने स्क्वायर का फाइंड आउट किया, देन रेक्टेंगल. नाउ वी विल ऐड बोथ एंड योर आंसर इज 304 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर? Now after this also find the area of the given figure. Now one more figure is given, S3. In this also one square and one rectangle is there, right? So now let's see the S3. Which type of shape is given here? Upper rectangle, right? And downside also rectangle. यहाँ पे जो है वो दोनों ही rectangle, आपके square नहीं है. Both are the rectangles. So now look at the shape. This one is 9 centimeter. This 3. This one 5 and 3 centimeter, not meter. और ये complete क्या है? 9 centimeter. ये 1 centimeter, right? So now again we will divide this in two parts, 1 and 2. So firstly for first length is 3 centimeter. देखो ये 3 plus 5 8 होगा, लेकिन 1 सेंटीमीटर की स्केल पे ये आया है. इट मीन्स इसने भी कुछ ना एरिया कवर किया है अपना. तो ये क्या आ जाएगा, कंप्लीट ब्रेथ क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 9. 3 9s are 27 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ फॉर सेकेंड, लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 9 सेंटीमीटर. वैसे देखो ये स्टैंडिंग में है, राइट? अगर आप इसको ऐसे किसी चीज़ को होल्ड करते हो तो जो ये लेंथ होती है क्या हो जाती है, कंप्लीट लेंथ. और जो ये होती है ये चीज़, ये क्या बताती है, इसकी ब्रेथ, वाइड. तो यहाँ पे ये अपोजिट हो गया. लेंथ आपका 9 हो जाएगा और ब्रेथ में 1 सेंटीमीटर, राइट? नाउ अगेन फाइंड area of second equals to length multiply breadth. 9 multiply 1 equals to 9 square centimeter. Now we have to find the total area. So you will write it, total area equals to area of 1 plus area of 2, that is 27 square centimeter plus 9 square centimeter. और एरिया क्या आ जाएगा आपका, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो क्लियर दीज 3 क्वेश्चंस which we have done. Now come to the S4. In the given figure, the green and the red shapes are square and rectangle respectively.
देखो जो ग्रीन है वो स्क्वायर में है और रेड जो है वो आपका किस में है, रेक्टेंगल में। इफ द साइड ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 2.5 सेंटीमीटर and that of the big green is 8 centimeter. So answer the following given question. So now see, this one is typical something. अगर यहाँ पे जो ग्रीन है बेटा, तो इसमें देखो बेटा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी ड्रॉ द शेप। तो ये देखो बेटा कुछ इस टाइप से शेप है आपकी। ये क्या है, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन एंड ग्रीन, और ये जो है वो रेड है, राइट। सो हाउ मेनी रेड आर देयर, 4। बिफोर दैट यहाँ पे गिवन क्या है आपको, साइड ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 2.5। इनकी जो साइड है वो कितनी है, ये भी 2.5, ये भी 2.5 एंड ये भी 2.5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद वेट, दैट ऑफ द बिग ग्रीन इज, बिग ग्रीन स्क्वायर इसकी क्या है, 8 सेंटीमीटर। सो वी नो ये जो है ये क्या है, स्क्वायर है, ये 8 है, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, राइट। सो और ये जो रेड है ये रेक्टेंगल है, यहाँ 8 है, तो रेक्टेंगल में हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये भी क्या होगा 8। ये स्क्वायर है तो ये भी क्या हो गया आपकी 2.5, ये भी 2.5, दिस ऑल्सो 2.5, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ ये स्क्वायर था एक, इसकी जो बिगर साइड गिवन है वो कितनी है, 8, तो 8, 8, 8 and this also 8 centimeter. Clear? Now firstly we find the total area of red colored, right? तो red colored में ये देखो how many, 1 2 3 4, 4 हैं, तो 4 की जो sides हैं वो equal हैं। So area of S4, area of red region, right? So firstly length equals to 2.5 centimeter and breadth equals to how much, 8 centimeter. So area क्या हो जाएगा आपका, first of all how many, 1 2 3 4, right? So 4 multiply लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्योंकि हमारा एक का एरिया जो है वो किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और हाउ मेनी, 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 8 5 ज़ा 44, 8 2 ज़ा 16 एंड 4 20, डेसिमल है, डेसिमल के बाद 0, स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 2 ज़ा 8 एंड 0, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आया है आपका एरिया ऑफ रेड रीजन, राइट। दिस इज द ए पार्ट। नाउ इन बी पार्ट, द टोटल एरिया ऑफ ग्रीन। सो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, अब उसमें देखो जो भी हैं बेटा सारे स्क्वायर हैं, स्क्वायर हैं। सो सब में क्या है, साइड इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। सो एरिया इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। सो नाउ मल्टीप्लाई 25, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 2 5 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 625। सो यहाँ पे 2 डेसिमल है, सो इट बिकम्स 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? ये क्या हो जाएगा आपका
6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो एरिया था इन 4 का। अब एक और है एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, उसकी साइड किसके इक्वल है, साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो टोटल एरिया, वेट यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 भी थी, इट मीन्स हमें इसे क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई, राइट। और जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे सो योर आंसर विल बी 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ टोटल एरिया ऑफ ग्रीन जोन, ग्रीन रीजन इक्वल्स टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, right? And this is equals to 5 plus 4 9, 6 plus 2 8, 89 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेड का क्या है आपका 80 और ग्रीन जोन का क्या है आपका 89 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ द सी पार्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स क्या थे हमारे रेड जोन और स्क्वायर्स क्या थे ग्रीन जोन। सो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड योर डिफरेंस इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर दिस क्वेश्चन? नाउ बहुत सिंपल है बेटा, आपको सिर्फ यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ किया गया है कि देखो ग्रीन की इन्होंने जो साइड बताई, इन्होंने क्या बताया था कि आपको जो भी ग्रीन है इसके अंदर वो सब क्या है स्क्वायर, और मिडल के ग्रीन की साइड गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और रेस्ट जो स्मॉल वन है उनकी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये रेक्टेंगल्स हैं रेड वाले, अगर यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब क्या है ये अपर में भी क्या होंगे 8, और ये स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा ये 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं क्योंकि ये नंबर इन 4 है और सबकी साइड इक्वल है, तो आपको बार बार मल्टीप्लाई करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 को मल्टीप्लाई करो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर दिस? नाउ द नेक्स्ट वन इज S5, a chessboard in the shape of square of side 40 centimeter as shown in the following figure. So what is the total area of the all the white squares of the board? So देखो, a chessboard is in the shape of square of side 40 centimeter. हर एक की जो साइड है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल द वाइट स्क्वायर बोर्ड्स? तो आप क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ 1 एंड मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ वाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 28 एंड 32। टोटल वाइट आर 32। तो आप एक का फाइंड करके उसको 32 से मल्टीप्लाई करो एंड दैट विल बी द एरिया ऑफ द ऑल वाइट स्क्वायर्स। आफ्टर दिस S6, द मैप ऑफ पाथ इज शोन एज इन द डायग्राम एडजेसेंट। इफ द कॉस्ट ऑफ लाइंग अ रोड पर यूनिट स्क्वायर मीटर इज ₹18,000, सो फाइंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन लाइंग द रोड ऑन द पाथ। सो देखो, अगर ये 5 है तो ये भी क्या है 5। क्लियर? ये आपकी क्या है 6, सो ये भी 6 है और ये भी 11 है। क्लियर? एंड दिस इज 5, इट मीन्स दिस वन ऑल्सो 5, तो ये कंप्लीट क्या हो गई आपकी 11, राइट। सो यू विल ट्राई टू डू इट, मेक इट दिस वन rectangle, all 3 are rectangle of different sides,
ये भी 12 है, यहाँ पे भी 5 आएगा। उसके बाद इनको ज्वाइन करके इनकी साइड्स क्रिएट करो। ट्राई टू डू right. After this we will do in the next lecture, and if anyone having problem, comment and ask.